ओके, यहाँ पे अभी कुछ मैंने आपको बहुत सारे रीजनिंग के पजल्स बताए, अभी कुछ क्वांट के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वांट के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्चुअली एसबीआई के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इट वॉज नॉट आस्क्ड इन द एसबीआई एग्जाम, बट इट इज़ आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम। ओके, the intention for this video is only to show you that out of 10, okay, generally when we are giving any exam, okay, in the quant section we will get at least 10 miscellaneous type, that is word problem, miscellaneous type questions, and out of 10 nearly 4 to 5 questions are there which do not require any calculations, means you can directly tick on the right option. Many students ask me that, sir, this is not possible, this is a bakwas method, okay, too much foolish, but it is that. If you want to believe or if you do not want to believe, it is up to you. Okay, I will show you some example. Okay, this is questions I had taken from the Bankers Adda. I think you all heard the name Bankers Adda. This first question is from the UBI question. Okay, I think PO exam is that, but I do not remember whether it is of mains or pre. Now see this first question. What is the question? Two trains start at the same time of Aligarh, Delhi, and proceeds toward each other at the rate of 14 km per hour and 21 km per hour respectively. When they meet, if it is found that one train has traveled 70 km more than the other, the distance between two train stations is. Now my answer is, now here 14, that is 7 into 2, 21, 7 into 3, 70, 7 into 10. So your answer must contain 7. बहुत लोगों ने बोला सर मस्ट कंटेन क्या है, मीन्स इसका मल्टीपल, मीन्स आंसर इससे डिवाइड होना चाहिए, सॉरी, मस्ट कंटेन 7. 140 has the 7, 350 has the 7, 210 has the 7, but 300 is not has the 7. Okay, so 300 हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं. Now just look at this, 1421, this is 210, आंसर नहीं होगा. 14 आंसर नहीं होगा, so answer will be 350. Where you need calculation, जस्ट टेल मी वेर यू नीड कैलकुलेशन. कैलकुलेशन की ज़रूरत है ही नहीं. किसने बोला कैलकुलेशन की चाहिए, है ना? कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं. क्या चाहिए आपको? एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या है? दैट इज यस, कॉमन सेंस. अगर आपके पास कॉमन सेंस होगी, यू कैन इजीली डू दिस कैलकुलेशंस, unless and until you will not. Now the next question is, the milk and the water in the mixture are in the ratio of 7:5. Sorry, is 7:5. When 15 liters of milk are added to it, the milk ratio of milk and water in the new mixture become 7:8. The total quantity of water in the new mixture is. Now न्यू मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी है वाटर की? अभी यहाँ पे 7:8 आ गया, मीन्स योर आंसर मस्ट कंटेन 8. ऑप्शन के अंदर 8 आना ही चाहिए, मीन्स ऑप्शन 8 के साथ डिवाइड होना चाहिए. तो 35 निकल गया, 60 निकल गया, 96 एंड 40 इज दैट. बट
बट हमने ऐड किया 15, आगे है 5 का रेशियो में, सो 5 विल ऑल्सो बी देयर, सो 96 इज नॉट द आंसर एंड 40 इज द करेक्ट आंसर. As I told you, you do not require any calculations. Next question, same from UBI exam, Bankers Adda. The Aman's expenses is 30% more than Vimal expenses. Aman 30% more plus Vimal. And Vimal expense is 10% less than Raman. Raman minus 10%. If the sum of their expenses is 6447, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि अमन का सबसे ज़्यादा होगा एक्सपेंस, होगा ओके, सबसे ज़्यादा अमन का एक्सपेंस होगा. एक फिगर मुझे दी है 7447, 3 लोग है, उसको मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा, सो आंसर विल बी 2 1 समथिंग समथिंग. 2 1 से ज़्यादा ही आंसर होना चाहिए, सो मेरे आंसर्स विल बी कैंसल्ड आउट. नाउ 2200 एंड 2457. अभी 6447 which is divided means it's contain 9. Why it's contain 9? Because it is divided with 9. चेक करते हैं, एक 9 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है? 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 7 21, यानी 9 से नहीं 3 से डिवाइड होता है. सो अपना आंसर भी 3 से डिवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है पैसे, 3 से डिवाइड होना ही चाहिए, तो ये नहीं आएगा और दिस विल बी योर आंसर 2457. ओके, अंडरस्टूड इन दिस. नेक्स्ट, working 5 hours a day, A can complete a piece of work in 8 days, and working 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days. Working 8 hours a day, they both can complete the work in, अभी 5 आवर में 8 डेज लगाता है. करना कितना? 8 आवर में 5 दिन लगाएगा. सिंपल है, सीधा ही है. और B now here 6 is the factor of 3, means your answer must contain 3. okay, and your answer will be more than 2.5. 2.5 के ऊपर 3 वाला फैक्टर कौन सा है? एक ही है. 3 is the answer. क्लियर कट है. कहाँ मुझे कैलकुलेशन करनी है? आप बोलोगे सर आपको पता है. बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेथड पता है, मुझे कॉमन सेंस है, और दूसरी बात मेरे पास फंडामेंटल्स है. अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है, बिल्कुल सिखाऊंगा, बस उसके लिए जस्ट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होने वाला है. IBPS PO के पहले अब तक आप कहते थे कि सिलोजिम में हमारे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक 5 में से 5 आ जाएंगे, इनइक्वालिटी 5 में से 5 आ जाएगी, नंबर सीरीज 5 में से 5 आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन 5 में से 5 आ जाएगी. IBPS में आप बोलोगे कि आउट ऑफ 10 वी कैन इजीली कलेक्ट 7 नंबर. दैट इज माई चैलेंज. ओके, 10 में से 7 नंबर आप इजीली लेके आ सकोगे. कब? IBPS PO तक. इतना मैं आपको दूंगा. अब तक आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस, आप आज तक आपने पढ़े होंगे
शॉर्टकट्स, बट कभी आपने फंडामेंटल्स नहीं देखा होगा। तो हम देखेंगे फंडामेंटल्स। देखते हैं कितने गुरुए आते हैं मुझे देखने के लिए। नेक्स्ट, a boat moves downstream at the rate of 1 kilometer in 7 minutes and upstream at the rate of 5 kilometer an hour, then what is the speed of the boat in still water? Again a question of what? Common sense. डाउनस्ट्रीम रेट क्या है? 1 किलोमीटर इन 7 मिनट, ओके। और अपस्ट्रीम का रेट क्या है? 5 किलोमीटर एन आवर, ओके। तो स्टिल वाटर में अभी ऑब्वियसली स्टिल वाटर का जो स्पीड होगी वो अपस्ट्रीम से ज़्यादा ही होगी, यानी 4 और 3.5 आपका आंसर नहीं आएगा, बराबर है। अभी 1 किलोमीटर 7 मिनट्स में करती है तो 60 मिनट्स में कितना करेगी? 7 मिनट्स में 1 किलोमीटर करती है तो 60 मिनट्स में कितना करेगी? ये आंसर्स कहीं से भी डिवाइजेबल मीन्स फ्रैक्शंस में ही रहेगा। अगर ये फ्रैक्शंस में रहता है तो आपका आंसर भी फ्रैक्शन में ही आएगा, और फ्रैक्शन में एक ही है, दैट इज 6 1.5, क्योंकि 60/7 कितने होते हैं? 8 पॉइंट समथिंग, बराबर है। और ये है 5, मुझे उसका मिड निकालना है तो वो 6.5 के करीब ही बैठेगा। है सिंपल, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना कॉमन सेंस आर फार बेटर देन कंसेप्चुअल अप्रोच और योर व्हाट, यस, योर शॉर्टकट्स। नाउ अभी जो है वो आरआरबी पीओ के पेपर्स में से है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा सर ये ऐसा मिल्क और वाटर रेशियो आता है, ये आता है, वो आता है, सबसे इजी है। पता है जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना उतना वो इजी होता है। क्यों इजी होता है? जस्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर अ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। ये पहला रेशियो हुआ। दूसरा रेशियो क्या हुआ? आपने 4 + 4 ऐड कर दिया। दूसरा रेशियो क्या बना? 8:3। अभी आपको क्या करना है? आपको करना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विच वॉज टेकन आउट इनिशियली। कितना निकाला गया वो देखना है। ये आता है आपका 11 का मल्टीपल है, बराबर है। सब ऑप्शंस देख लो। ऐड हमने सिर्फ 8 लीटर किया है और ऑप्शंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि द क्वांटिटी जो लास्ट में जो क्वांटिटी बचती है वो डिक्रीज हुई है। सो 11 का मल्टीपल 40 से नीचे कौन सा हो सकता है? दैट इज़ 33। 33 से 40 करते वक्त कितना चाहिए? 7 चाहिए, बराबर है। कितना हमने ऐड किया? 8 ऐड किया। 8 के अंदर 7 ऐड करें, कितना हुआ? 15। दैट इज द आंसर। कहाँ है? वेयर इज द इक्वेशंस? दिस इज कॉमन सेंस, जस्ट अ कॉमन सेंस, ओके, एंड फंडामेंटल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a present age of A is twice the age of B 18 years ago। ना कौन कौन से मुझे नंबर्स दिख रहे हैं? 18 years, twice यानी 2 into, ओके, ABC 42, 9 year hence एज क्या होगी? 9 year hence एज क्या होगी? बराबर है। 9 years हैंस एज ढूंढनी है हमें। यहाँ पे सिंपल
18 है, 2 इंटू एक्स फॉरगेट दैट, 42 है, 9 है, सब कुछ मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ 3 से डिवाइड होता है। योर आंसर मस्ट कंटेन 3, कुछ भी हो जाए 73 और 77 आपका आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर 69 में भी 3 है, 70 में 3 नहीं है। ओके, बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पहले जो ऑप्शन है उसमें से माइनस करने पड़ेंगे कितने, दैट इज 9, सॉरी माय मिस्टेक, 73 इज दैट, आपको माइनस करने पड़ेंगे 9। तो ये बन गया मेरा 60 विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया 61 विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 72, अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, सॉरी ये हो गया 63, कैन बी डिवाइड 64, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 एंड 77 माइनस 9, ये हो गए मेरे कितने 68। ओके, सो एक ही आंसर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज माय आंसर। चेक करना है तो चेक कर लीजिए, शरत लगानी है तो शरत लगा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इजीली होता है और हम लोग इजीली ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन आरआरबी मेन से ही है। अ बोट टेक 6 minutes more to cover 21 km downstream when the river flowing at the speed of x km/h than the time taken to cover the same distance downstream when the river flowing at the rate of x plus 1 km/h. Find the value of speed of boat in still water is। डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, दैट इज बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, बराबर है। आपको क्या ढूंढना है, आपको x ढूंढना है। x क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, ओके, द फ्लोइंग स्पीड ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया है बोट की स्पीड 12, बराबर। नंबर देख लीजिए, नंबर है 21, एक ही नंबर है, दूसरा है 12, 21 यानी 3 × 7। ओके, अब मैं ऐड करता जाऊंगा। पहले 1.5 ऐड करो तो 12 प्लस, पहले मैं ये देखूंगा कि 3 कहाँ पे बन रहे हैं, 3 कहाँ पे बन रहे हैं वही देखूंगा। 12 के अंदर ऐड करूंगा 1.5 तो वो कितना हो जाता है, दैट इज 13.5। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, इट इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, और उसके अंदर एक और ऐड करूंगा तो 14.5, ये पहला आ गया। 2 के अंदर ऐड करूंगा दैट इज 14 और 15। नाउ जस्ट चेक हियर, इट इज 14 मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 7, this 15, this can be divided by 3, so my answer will be this only. I don't need to check any other answers, is it? What can I do better to go for that कि मैं सब आंसर्स चेक करूँ, ये करूँ, इससे अच्छा मैं बैक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। सो पहला मेरा होगा 21 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 60। ओके, so this will be 3 and this is 30, this will be 90 minutes। Okay, now again then I have to check 21 kilometer at the speed of which one, 15। The difference between 90 and 84 is 6 है। सही मेथड कहाँ चेक करना है मुझे,
कैलकुलेशंस करनी ही नहीं है। क्यों करनी है? ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कैलकुलेशंस की, क्योंकि मुझे तो पता ही, यकीन है, पूरा यकीन है कि यही आता है। भैया रिसर्च करके बैठे हैं, ऐसे ही नहीं है कि बस किसी का देखा वीडियो और डाल दिया। पूरा यूट्यूब ढूंढ लो, पूरा गूगल ढूंढ लो, अगर मुझसे शॉर्टकट मेथड मिले ना, बराबर है, तो छोड़ दूंगा ये। नाउ नेक्स्ट, अ मैन बॉट अ मोबाइल and a laptop of 78,000 is sold. The mobile at a gain of 25% and the laptop at a loss of 15%, thereby gaining 5% on the whole. Find the cost price of the mobile. अभी यहाँ पे एक फंडा यहाँ पे लगता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने को पता होगा। अगर 25% का गेन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 20% लॉस, बराबर है। यानी ये 20% लॉस करेगा, 15 करेगा तो 5 आ गया, इजी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर सीधा ही 78,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 39000 है। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको मेरी और वीडियोस देखनी पड़ेगी, समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबाउ इट if it is diameter of 105 and it is slant height of conical part is 63। now यहाँ पे देखो 63 आया है, बराबर है। पाई की वैल्यू जनरली हम लोग लेते हैं 22/7, हमेशा 22/7 ही लिखी जाती है, 3.14 नहीं ली जाती। अगर 3.14 आपने ली तो आंसर हमेशा पॉइंट में ही रहेगा, बराबर है। तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है। तो कैनवास कितना चाहिए, दैन द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज, यहाँ पे क्लियर है 22 है यानी 11 का मल्टीपल है, 63 है यानी 7 का मल्टीपल है, ये दोनों मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ पे है 11 पर 7 नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। इसको चेक करते 11385 नाउ अभी 11 का मल्टीपल है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? इवन नंबर के प्लेसेस और ऑड नंबर के प्लेसेस को ऐड करते हैं, दैट इज 5 + 3 + 1 इक्वल टू 9, 9 - 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 या 11 हो देन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 11। ओके, नेक्स्ट नंबर 10395 अगेन this is 9 means it's also can be divided by 11, but we have to check the number for 7 whether it can be divided by 7. Yes, this can be divided by 7, just check it. Okay, and this is the answer. I don't care कि कहाँ से क्या जाना, कुछ भी जाना, वो हो रहा है तो हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज फॉर टुडेज सेशन। बहुत सारे और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, पहले मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम कैसे होती है। जितने पेपर बोलो इतने दिखाऊंगा, और ये पेपर कहीं मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूँ, ये पेपर सीधा ही मैंने उठाया है बैंकर्स अड्डा से। आप चाहे तो उसका एक सेक्शन है कैप्सूल में मेमोरी पेपर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।